जी। Hare Krishna. Okay. Mataji, I'll introduce once. I'll just 2 minutes. So, Hare Krishna, everyone. We welcome all of you to this program. On behalf of Attapur Shri Radha Madhav devotees, we welcome Gita Govind Mataji to this program. Thank you, Mataji, for your valuable time for all of us. So let me introduce Mataji. Of course, actually, I can speak a lot, but I'll cut it short so that Mataji can have a good time. So Geeta Govind Mataji, she studied psychology, and for some time she worked also as a psychologist. And then later in 1995, she got introduced to Krishna consciousness. And 1997, she got initiated by His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj in Baroda. Mataji is my Siksha Guru also. She used to come to our hostel for preaching girls. And very successfully, so many girls started practicing Krishna consciousness. So due to Prabhu's, Mataji's, Prabhu, Gunraj Prabhu's office work, Mataji used to travel, the whole family used to travel to different places, and in India also and in abroad, like Europe and London and many other places. And in India also, she has lived in many places. And wherever she went, she formed a very nice group, very serious practicing group. And then she followed them up for for initiation also. So now Mataji is living in Mayapur Dham with her Prabhu and son. She also handled matrimonial services. She served in His Holiness Jayapataka Swami Maharaj's marriage bureau for 5 years. Mataji is authoring a book on Sri Dharma, and soon we'll be able to read her book. I hope so soon. If of course, she's writing in Tamil, but she said she'll be simultaneously doing the facilitating us in English. So she writes articles and does a lot of translation work. And for last 10 years, she is preaching to the Tamil speaking, because Mataji's mother tongue is Tamil, even though she is fluent in English, Hindi, Tamil, all languages. She is preaching to Tamil speaking devotees all around the world. So we are very fortunate to have her association, and I hope this today's program, today's class is one class, but I request Mataji to keep a series of classes on this topic, because I know this one class won't be sufficient. So I hope Mataji will be able to, give her time for the series of classes, and we all will be benefited. Okay, thank you, Mataji. Thank you. Please take over. My first question is, you told that the class will be in Hindi, but you introduced me in English. So Yeah, I spoke in English. Many are English speaking crowd in this, and Telugu सब मिक्स हैं, but बहुत सारे इंग्लिश वाले भी हैं. But Hindi, I feel Hindi is better. Sorry, I spoke in English somehow. okay. Because सब वर्ड मुझे हिंदी में नहीं आएगा, इसलिए भी नहीं किया. ठीक है, तो फिर बिकॉज क्योंकि मैं एक ही लैंग्वेज में जा सकता, मिक्स करूंगी तो मैं थोड़ा ये हो जाऊंगी, तो मुझे बोला गया कि हिंदी में बात करें. ओके माताजी, हिंदी में कंटिन्यू करेंगे. इंग्लिश में रहूंगी तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, मगर बीच बीच में इंग्लिश तो आ ही जाएगा. तो हिंदी में ही सोचा, क्लास के बारे में हिंदी में ही सोचा. तो भक्तजन कोई हिंदी नहीं जानते तो बता दीजिए, तो सब लोगों को हिंदी तो आएगा होपफुली, तो हम हिंदी में शुरू करेंगे. इंग्लिश है तो मेरे लिए इजी है एक्चुअली, मगर ठीक है, बोला गया कि हिंदी में बात करिए. हिंदी में हरे कृष्णा माता जी, हिंदी में बोलो, समझ में आता. अच्छा, ठीक है, ठीक है, हिंदी में ही करेंगे. सबको सादर प्रणाम. पहले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. तो श्यामेश्वरी माता जी कल मुझे बताया कि आप थोड़ा हमारा लेडीज के लिए बोलिए. ठीक है, हम सब भक्त है. ठीक है, ये स्त्री के बारे में हम सोचेंगे तो
भक्ति प्रचार में सब लोग है, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें दो चीजों का याद होना चाहिए। दो कर्तव्य बोला जाता है। ये कर्तव्य तो जीवन का कर्तव्य है। जीवन का क्या स्वरूप है? जीवेरे स्वरूप हाया नित्यरे कृष्णदास। तो हम सब जीव है, इसका जो कर्तव्य है पहले आगे आता है। तो हम सब भक्त बनना चाहिए भगवान के धाम पहुंचने के लिए। कलयुग धर्म निभाना चाहिए, नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये सब हम जानते हैं। उसके साथ हमारे लिए जो शरीर दिया हुआ है, उस शरीर के लिए हमको कुछ कर्तव्य निभाना पड़ता है। इसलिए हम लोग महिलाओं का क्लास अलग रखते हैं, क्योंकि ये आदमी और औरत, माता जी और प्रभु जी अलग अलग है, उनका कर्तव्य भी अलग अलग है। तो ये जब हम समझते हैं बराबर, तो हमारा सक्सेस, हमारा जो सफलता आराम से हो जाएगा। इसमें हमको कुछ कंफ्यूजन होता है, तो अभी सोसाइटी में बहुत कंफ्यूजन है इसके बारे में। इसमें हम क्लियर रहेंगे, हमारा प्रगति जल्दी हो जाता है, हमारा प्रगति सरल में हो जाता है। औरत लोगों के लिए तो प्रगति बहुत सरल है, इजी है। तो इसके बारे में मैंने सोचा, अभी हमारा माताजी लोगों के लिए किसको मैं बताऊं, किसके बारे में बताऊं। तो तुरंत मेरे ध्यान में भागवत का एक भक्त का याद आया। ठीक है, हम दुनिया में देखते हैं कुछ कुछ भक्त सिर्फ भक्त है, कुछ कुछ भक्त, कुछ कुछ लोग, औरत लोग पतिव्रता है, पतिव्रता देखते हैं, भक्त देखते हैं, पर पतिव्रता भी है, भक्त भी है। हमारा गोल तो यही है, हमको अपना शरीर का कर्तव्य है पतिव्रता का निभाना, ये शरीर का कर्तव्य है। आत्मा का कर्तव्य हम सबको कृष्ण भक्त बनना है। दोनों एक ने निभाया, वो है देवहूति। श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो में इनका वर्णन आ रहा है। उनका जिंदगी में आप लोग सभी सुने होंगे देवहूति के बारे में, फिर भी हम अलग दृष्टि से इस कहानी को देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा हम कैसा जीना चाहिए। तो देवहूति कौन है? ये सब कहानी नहीं है, हिस्ट्री है, इतिहास है, हुआ था ऐसा। तो इसलिए इसको कहानी बोलने के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी बोलना चाहिए। ये भागवत में इनका वर्णन आता है। देवहूति कौन थे? देवहूति मनु की पुत्री। मनु का 5 बच्चे थे, 2 तो प्रियव्रता और उत्तानपाद और 3 लड़कियां, देवहूति, प्रसूति, आहुति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति उस जमाने में मिस वर्ल्ड थी, ऑर्डिनरी नहीं, साधारण औरत नहीं थी, इतना सुंदर था। जब वो अपना छत पर गेंद खेलती थी, उसको एक गंधर्व ने देखा। गंधर्व देखा, उस अपना एयरप्लेन से नीचे गिर गया। इतना सुंदर थी देवहूति। नारद मुनि उनको मिलने के लिए जाते थे, तो देवहूति को बोला आपका लायक पति तो गर्दम मुनि है। तो देवहूति तब से उन्होंने अपना दिल को रख दिया कि गर्दम मुनि को ही शादी करेंगे। तो हम आएंगे गर्दम मुनि के पास। गर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको भक्ति के अलावा कुछ नहीं है, जानते हैं वो सिर्फ भगवान का भक्ति में वो युग अलग था, इसलिए तपस्या करते थे। इतना तपस्या ही करते थे।
मगर उनका पिताजी ब्रह्मा जी उनको बोले आप एक प्रजापति है, प्रजापति का ड्यूटी ये होता है कि जनसंख्या बढ़ाए, ज्यादा बच्चा पैदा करे, यही उनका कर्तव्य है। मगर गर्दम मुनि को दिल तो इसमें ज्यादा नहीं है, मगर बड़ों का आज्ञा पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी के लिए भी भगवान का आज्ञा, भगवान का इच्छा जानना चाहते थे, इसलिए तपस्या किया। उन्होंने बहुत साल तपस्या किया, कठोर तपस्या। भगवान इतना प्रसन्न हो गए तो उनके सामने आ गए। गर्दम मुनि भगवान को सामने देख रहे, तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, मेरा पिताजी का आज्ञा है, मुझे शादी करना है, एक पतिव्रता औरत से शादी करना है। आपको इसमें इच्छा है तो इसका आप इंतजार कीजिए, आपसे नम्र विनती करता हूं। तब भगवान ने बोले हाँ, आप 2-3 दिन में मनु अपना बेटी को आपको देगा शादी में। आप दोनों अच्छा गृहस्थ जीवन में बच्चा पैदा करेंगे, 9 लड़कियां पैदा करेंगे। उसके बाद मैं स्वयं, मेरा अंश आपके पत्नी का गर्भ में अवतार लेके आऊंगा और सांख्य योग सिखाऊंगा। उसके बाद जब मैं आने अवतार लेने के बाद तुम फिर से संन्यास ले सकते हो करके उनको भगवान ने बात किया और डिसअपियर हो गए। गर्दम मुनि अपना जीवन चलाते थे। मीन्स 2-3 दिन में, ये तो उस टाइम मोबाइल फोन नहीं था, ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फिर भी ये सब कनेक्टेड था। भगवान का इच्छा होगा तो ये सब पता चल जाता है। तो स्वयंभू मनु, उनका पत्नी शतरूपा देहूति को लेके आई गए जंगल में, जिधर गर्दम मुनि तपस्या कर रहे। गर्दम मुनि सरस्वती नदी के किनारे एक बिंदु सरोवर करके एक जगह है, उधर थे। तो बिंदु सरोवर के बाजू में वो आ गए मनु और उनका परिवार। तो उन्होंने नम्रता से गर्दम मुनि को अपना बेटी को कन्यादान किया। गर्दम मुनि भी स्वीकार कर दिया और अच्छी तरह शादी कर दिया, और मनु और उनका पत्नी शतरूपा चले गए। अभी देवहूति और गर्दम मुनि दोनों शादी होके, गर्दम मुनि का कुटिल है, सिंपल लाइफ। देवहूति तो क्या प्रिंसेस थी, इस दुनिया का राजा। मनु ऑर्डिनरी नहीं है, ये पूरा प्रपंच का राजा थे। और उनका क्या अपलंस था, ऐश्वर्य था। उधर पालन पोषण हुआ, मगर अभी जिंदगी हुआ एक सिंपल मुनि के साथ, ऋषि के साथ। उनके पास कुछ धन दौलत नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो देवहूति उसके लिए तैयार थी, और उनका भक्ति जीवन के लिए गर्दम मुनि को जो पूजा के लिए चाहिए वो सब इंतजार, पानी लाना, प्रसाद बनाना, फूल लाना, माला बनाना, उनका सेवा में लग गई। गर्दम मुनि को शादी हो गया, मगर पति है भूल गए, वो फिर से ध्यान में चले गए। पर उनका सेवा जो भी करना है देवहूति ने करने आई, करती करती रह रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। बहुत साल बीत गया। तो देवहूति इतना पतली दुबली, क्योंकि अपना ध्यान तो नहीं रखा, ऋषि का सेवा करने लगी। गर्दम मुनि भूल गए शादी हुआ करके, क्योंकि इतना अच्छा भक्त थे वो, इसके बारे में सोचना ही याद नहीं है। इतना भगवान पर वो लीन हो गए, भगवान का ध्यान में लग गए। तो देवहूति अपना ध्यान नहीं रखा, पति का सेवा में लग गई। कभी भी मन में काम वासना नहीं है, लाइफ को एंजॉय करेंगे, नया नया शादी हुआ, लाइफ को एंजॉय करेंगे, ऐसा ध्यान नहीं है। देवहूति को भी पति का सेवा में लगी रही है।
तो एक दिन गर्दम मुनि आंख खोले, बाजू में देखा तो एकदम पतली दुबली काली लड़की है। कौन है ये? हाँ हाँ हाँ, मेरा पत्नी, याद आ गया। तो फिर देवहूति से बात किया गर्दम मुनि ने। आप तो अच्छा मेरा सेवा किया, आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए? तो देवहूति बोल रही है, मेरा तो पर्सनल इच्छा कुछ नहीं है महर। अ, आपने भगवान से वादा किया, आप ब्रह्मा जी से वादा किया कि आप संतान उत्पन्न करेंगे, और एक औरत होने के नाते मैं माँ बनना चाहती हूँ, और मुझे बच्चा चाहिए। ये तो सिंपल हार्टेड है, देहूती कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल हार्टेड है। इसलिए नम्रता से विनती किया। तब गर्दम मुनि को याद आया, ठीक है, अभी पत्नी को खुश रखना भी मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अभी वो देहूती बोलती है कि मेरा शरीर उसके लिए लायक नहीं बना अभी। तो उन्होंने बोला ठीक है, बिंदु सरोवर में जाके स्नान करो। उधर जब जाके स्नान किया तो उसका शरीर में सब ताकत आने लगा, और उसको 1000 मेड सर्वेंट्स मिला, नौकरानी। देहूती को हेल्प करने के लिए, सजाने के लिए, सर्विस करने के लिए 1000 मेड सर्वेंट्स को गर्दम मुनि ने क्रिएट किया। और साथ में एक मूविंग प्लैनेट बोलते हैं, जो एक मकान बनाया। मकान बना सकते हैं दुनिया वाले, वो छोटा सा 2 बेडरूम 3 बेडरूम मैक्सिमम। महर इन्होंने, एक ऋषि है, मुनि है, महर उनका मिस्टिक पावर इतना था कि वो एक मूविंग प्लैनेट बनाया। हम देखते हैं दुनिया में चंद्र है, सूर्य है, बहुत सारा प्लैनेट्स तो घूम रहा है, मगर एक साधु के पास इतना मिस्टिक पावर है, वो एक मूविंग प्लैनेट बना सकते थे। पर तब तक तो जीवन सिंपल जीवन ही था उनका, को जिंदगी का मकसद तो सिर्फ भगवान ही था, मगर जब जरूरत पड़े तो वो कर सकते थे। तो एकदम अच्छा प्लैनेट, उसमें सब सुविधा, सब ये नौकरानी लोग, सब जो खाने के लिए, सब ऐश्वर्य था। तो देवहूति को लेके वो घूमते थे। वो कभी अपर प्लैनेट्स, कभी दूसरा प्लैनेट्स, किधर भी जाते थे, वो ट्रैवल करते थे। और देवहूति को कितना खुशी चाहिए उतना खुशी वो देते थे। ऐसा माना जाता है कि औरत लोगों का जो डिजायर है, जो सेक्स डिजायर है, 9 टाइम्स ग्रेटर देन मेन। इसलिए ऐसा बोलता है कि औरत लोग कभी सन्यासी बन नहीं सकते, क्योंकि लेडीज का, जो औरत का सेक्स डिजायर ज्यादा है। कभी कभी दुनिया में एक दो, हिस्ट्री में एक दो सन्यासी बन सकते हैं, पर ज्यादातर औरत का नेचर ही ऐसा है कि वो बढ़ेगी। इसलिए स्त्री नाम हुआ, स्त्री मीन्स एक्सपेंशन, वो बढ़ेगी। तो उनका सेक्स डिजायर भी ज्यादा है, इसलिए गर्दम मुनि उनको 9 टाइम्स एक्सपैंड होके, खुद एक्सपैंड होके उनको सेटिस्फाई किया। तो इसके वजह से उनको 9 लड़कियां पैदा हुई। 9 लड़कियां पैदा होने के बाद गर्दम मुनि सोचा, अभी हो गया काम, बच्चा तुमको मिल गया, अभी मुझे छोड़ दो, मैं जाता हूँ तपस्या फिर से करने के लिए। तब देवहूति माता रोने लगी, आप जाने के बाद मुझे मार्गदर्शन भी करना चाहिए ना, अब तो चले जाएंगे, ये लड़कियों का शादी करना है, और मेरे लिए मार्गदर्शन करने के लिए एक लड़का भी चाहिए। भगवान, आप हमारा मेरा गोद में आने के लिए तैयार भी है, इसलिए आप कृपा करके थोड़ा टाइम और भी आप हमारे साथ रहिए। तो गर्दम मुनि ठीक, फिर फिर भगवान को वो दोनों आमंत्रण दिए। भगवान कपिल मुनि देवहूति के गर्भ में अवतार लिया। तब ये 9 लड़कियों को
ऋषि मुनियों के साथ शादी करवाया। फिर जब कपिल मुनि बड़े हो गए, उनका माँ को वो देखभाल करेंगे ऐसा हो गया, तो गर्दम मुनि वानप्रस्थ लेके संन्यास लेके चले गए। आप इसमें देखेंगे तो गर्दम मुनि और देवहूति दोनों पावरफुल डिवोटीज है। देवहूति अपना पति से सेपरेट होने के लिए भी तैयार हो गई, क्योंकि उसको पता है कि एक आदमी अपना कर्तव्य खत्म होने के बाद पूरा वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। अब पूरा भागवतम में आप देखेंगे तो एक टाइम तक अपना कर्तव्य निभाना है, फिर पूरा की पूरा वानप्रस्थ जीवन लेना है। तो गर्दम मुनि हमको ये सिखा रहे हैं कि कर्तव्य खत्म होने के बाद पूरा की पूरा भगवत भक्ति में जाना है। आदमी लोग संन्यास ले सकते हैं, मगर औरत लोगों को संन्यास है ही नहीं। तो फिर भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? अपना गृहस्थ में जी के इधर से घर से ही भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति घर में ही करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ही अवतार लेके आए। अभी भगवान ही घर में आ गया तो गर्दम मुनि को जाने का क्या जरूरत था? नहीं, भगवान का हुक्म था कि आप जाके तपस्या करके मेरे पास आओ। तो उनको ये गर्व नहीं है, हाँ हाँ भगवान ही मेरे घर पे आ गए तो मैं फिर मेरा उद्धार उद्धार हो गया। नहीं, जितना मेहनत करना है, जितना कोशिश करना है, जितना तपस्या करना है, उनको करना पड़ा। तो गर्दम मुनि तपस्या करने के लिए गए और कपिल देव अपना माँ को गुरु बन गए। देवहूति का जिंदगी में हम एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, एक औरत शादी के पहले पिताजी के अंडर में, शादी के बाद पति के अंडर में, पति वानप्रस्थ जीवन के लेने के बाद, सन्यास बनने के बाद लड़का का अंडर रहना पड़ेगा। ये देवहूति परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले स्वयंभू मनु के अंडर में रहती थी, फिर शादी होने के बाद गर्दम मुनि के अंडर में, और वो सन्यास लेने के बाद कपिल देव के अंडर में। अभी कपिल देव माँ को शिक्षा दिया। तो ये सांख्य योग जो है थर्ड कैंटो में बताया हुआ है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी है सांख्य योग। बाहर वो किसको किसको दिया हुआ है? एक औरत को। तो इसमें हमको ये सुनने के लिए मिलता है, ये समझने के लिए मिलता है कि औरत लोग भी हायर लेवल में जा सकते हैं, अपना कर्तव्य निभा के, अपना घर में ही रह के हाई डेस्टिनेशन जा ही सकते हैं। तो कपिल देव इतना कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी, भक्ति योग ही है, मगर सांख्य योग जो है ये यूनिवर्स को कैलकुलेट करके, ये दुनिया क्या है, भौतिक दुनिया किससे बनाया हुआ है, क्या है, इसको जान के उसके द्वारा भक्ति योग करते हैं। वही सांख्य योग है। 24 एलिमेंट्स को समझने के बाद में ये शरीर क्या है, किससे बना हुआ है, ये दुनिया क्या होता है, भौतिक दुनिया में क्या क्या है, कैसा है, वो सब जान के फिर भक्ति योग लेते हैं। इसको सांख्य योग बोला जाता है। तो वो देवहूति को सिखाया। फिर कपिल देव जाके गंगा सागर में अभी भी तपस्या कर रहे हैं। गंगा सागर इधर ही है, वेस्ट बंगाल में। उधर तपस्या करते हैं वो, अभी भी नित्य तपस्या उनका हो रहा है। तो उसके बाद देवहूति का जीवन समाप्त होने लगा। तो वो मिस यूनिवर्स है। ज्यादातर मिस यूनिवर्स लोग क्या करते हैं, अपना शरीर को लेके मैं मिस यूनिवर्स मैं इतना सुंदर हूँ, इस सुंदरता में क्या मिलता है उसके पीछे भागे हुए हैं। देवहूति का सुंदरता प्रशंसनीय है। हम प्रार्थना उसको हम आराधना कर सकते हैं। तो इसके लिए उसका सुंदरता अच्छा अच्छा काम किया। वो पतिव्रता बनी और भगवान को लाया। उस
उसका गुण से, उसका भक्ति से भगवान को अपना घर में लाया, भगवान से शिक्षा लिया। फिर वो एक नदी में, नदी बन गई, वो तीर्थ स्थल बन गई। उस नदी का नाम मैं भूल गई। वो अपना शरीर, उनका शरीर मेल्ट होके एक होली होली रिवर बन गया देवहूति का। वो अभी भी आप भागवतम 3rd कैंटो में पढ़ सकते हैं। तो देवहूति का ये जो जीवन का वर्णन हम क्यों किया कि हम इसको सुन रहे हैं ना, सुनने के बाद हमको 2 चीज, इम्पोर्टेंट चीज औरत लोग पालन करना चाहिए। एक तो शरीर का कर्तव्य है, एक आत्मा का कर्तव्य है। दोनों काम देवहूति ने किया, भक्ति भी किया और घर का काम भी किया। कभी कभी लोग जो भक्ति में आते हैं वो लोग सोचते हैं सिर्फ भक्ति करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ घर का काम निपटा दोगे तो ठीक है, भक्ति नहीं, भक्ति क्यों करना है, ये भौतिक लोग सोचते हैं। भक्ति में आने के बाद कुछ लोग सोचते हैं घर का काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ मंदिर में सेवा करना चाहिए, घर का काम नहीं करना चाहिए। बाहर दोनों गलत है। घर का काम भी मंदिर का काम ही है। हम घर को मंदिर बनाना चाहिए। जब औरत पक्का पक्का भक्त बनेगी, पक्का पतिव्रता बनेगी, बच्चे और पति बहुत खुश रहेंगे, बहुत शांतिमय वातावरण घर में बनेगा। जब घर में शांति फैलेगा फिर सब खुश रहेंगे, सब लोग अब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वातावरण, अच्छा वातावरण मिलेगा। कुछ औरत लोग सोचते हैं कि सेवा मंदिर मंदिर में, घर का छोड़ देते हैं। नहीं, घर में सेवा अच्छा करना चाहिए। इसमें एक बहुत जरूरी सेवा एक होता है, वो सेवा है प्रसाद, भोगा बनाना। ये भोगा बना के भगवान को रख के फिर प्रसाद बना के प्रसाद दे खिलाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस है। ऐसा लगता है कि लोगों को खाना बनाना है ना, तो बाहर ये एक सेवा है, बहुत बड़ा सेवा है, क्योंकि इसमें प्यार भरा हुआ है। जब औरत लोग प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग बनाते हैं, उसमें उसका भक्ति और प्यार दोनों मिलता है। जब भगवान को हम अर्पित करते हैं, ये श्लोक आता है ना भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उभहत्रम अश्नामि प्रयदात्मनः है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो अर्पित हम कर ही सकते हैं भगवान को, बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते, सब दे सकते हैं। जब एक औरत पतिव्रता भक्ति के साथ चढ़ाती है, वो इंपॉर्टेंट है। पत्रम पुष्पम दे सकते हैं मगर भगवान क्या बोलते हैं, उसको भक्ति के साथ दे दो। इस श्लोक में 3-4 बार भक्ति भक्ति आता है। कोई भी आमिर आके बहुत डोनेशन देते हैं मंदिर में, है ना, बहुत डोनेशन देते हैं। मगर इधर भगवान क्या मांगते हैं, डोनेशन की जरूरत है क्या भगवान को? नहीं है। हम अपना ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, भगवान का ही है सब कुछ, तो इसलिए भगवान को हम अपना ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं। इसलिए मगर इसके साथ हमको भक्ति भी ऐड करके देना पड़ेगा। जब माला बनाते हैं ना, माला भगवान के लिए गार्लैंड बनाते हैं, माला बनाते हैं, उसमें हम भक्ति ऐड करके डालेंगे तो भगवान एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं तो वो स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए हमको जब हम खाना बनाते हैं, उसको भोगा बनाते हैं, भगवान के लिए बनाते हैं, फिर जब भगवान उसको उसमें भक्ति देखते हैं तो स्वीकार करते हैं, फिर वापस हमको प्रसाद और महाप्रसाद मिलता है। ये महाप्रसाद को हम घर में बांटते समय सब घर में सब लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जरूरी काम है ना।
बहुत जरूरी काम है। तो हर एक औरत लोगों को ये सीखना चाहिए कि घर में सेवा, घर में भी सेवा, मंदिर में भी सेवा, देवहूति जैसा भक्ति भी करना चाहिए, घर का सेवा भी करना चाहिए, करके अब आगे बढ़ना चाहिए। और हम आगे आने वाला क्लास में, जो भी क्लास हमारा आने वाला क्लास में, और औरत लोग जो गुण को बढ़ाना चाहिए, जी, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज मैंने थोड़ा ही बताया। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है औरत के लिए, वो हम आगे आने वाला क्लासेस में हम चर्चा करेंगे, ज्यादा डीपली जाएंगे। आज तो एक स्टोरी बताया देवहूति के बारे में, हम कर्तव्य, औरत लोगों का कर्तव्य के बारे में बताया। तो अभी मैं बंद कर देती हूँ। आप लोगों को कुछ सवाल है या कुछ कमेंट्स है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। रोज करते क्लास क्या संडे संडे करते? ये संडे संडे होगा, संडे संडे। हफ्ते में एक होगा। रोज तो माता जी, श्यामेश्वरी माता जी रोज कुछ कर रहे हैं, आप उसमें हाँ, शामिल हो सकते हैं। हमको इंग्लिश नहीं आता माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, हफ्ते में एक बार आप ये हिंदी क्लास में आप आ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे उत्तम कृष्ण माता माता जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माता जी। कोटि माता जी, मैं तो बहुत आभारी हूँ क्योंकि मुझे बाकी के दिन में टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज मैं जब मैसेज देखा माता जी का, मैं इतना गदगद हो रही हूँ कि मैं बोल नहीं सकती माता जी। मुझे इतना खुशी मिले, मैं बहुत दिन से यही सोच रही थी। सत्संग, सत्संग इतना जरूरी है। आप इमोशनल हो गए, अच्छा है आप आइए, हम लोग सत्संग में मिलेंगे आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अब ये एक सेवा है, प्रचार करना एक सेवा है। अब सेवा सेवा मुझे जी माता जी, निभाऊंगी। मैं बाकी दिन ड्यूटी जाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। हाँ, अभी संडे संडे ये क्लास हो रही है, मेरे लिए तो ये गोल्डन चांस है, मुझे भगवान ने दिए हैं। मैं आपके चरण में कोटि कोटि दंडवत करती हूँ और सामेश्वरी माता जी को भी दंडवत प्रणाम करती हूँ। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रेया यादव माता जी, श्रेया। Hare Krishna Mataji. Mataji, I have a doubt. Can I ask in English, Mataji? यस यस। Mataji, for women, attraction is also more, no, Mataji, towards their family and all. So how can we do simultaneously bhakti with that attraction, or at the end of the life, how can we detach ourselves from all this? अपना कर्तव्य अच्छा निभाते समय एक हम लोग अभी भक्ति संघ में है ना, प्रभुपाद जी ने औरत लोगों को भी भक्ति करने के लिए चांस दिया। ऐसा नहीं है कि अब अल्टीमेटली वैदिक ट्रेडिशन में देखेंगे तो एक अच्छा भक्त का पत्नी बन जाओगे तो आपको भक्ति, सॉरी श्रेया, कैन आई स्पीक इन हिंदी? Yes, Mataji, I can understand. Thank you. ये श्रेया माता जी ने एक सवाल पूछा कि आ, हम लोगों का घर घर परिवार में ज्यादा लगाव है, अटैचमेंट है, उसमें हम भक्ति कैसे करें? अटैचमेंट और लव, दो शब्द को आप अच्छी तरह समझना चाहिए। अ, हिंदी में अटैचमेंट को क्या बोलते हैं श्यामेश्वरी माता जी? हिंदी में अटैचमेंट को लगाव। हाँ? लगाओ लगाओ लगाव। तो एग्जैक्टली एक टर्म होना चाहिए अटैचमेंट के लिए हिंदी में। सॉरी, मैं मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो अटैचमेंट ही बोलेंगे। अटैचमेंट, लगाव अलग है, प्यार अलग है। हमको परिवार में प्यार रखना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, मगर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट क्या होता है मैं बताती हूँ। जब हम किसी के साथ अटैचमेंट रखते हैं तो उधर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे जाएगा। मानिए आपका एक बच्चा है, बच्चा के प्रति आप प्यार रखते हैं,
प्यार ठीक है, अटैचमेंट रखेंगे तो वो जो भी गलत करेगा आप चुप रहेंगे। आप प्यार रखेंगे तो वो गलत करेगा तो आप उसको डांटेंगे। अटैचमेंट रखेंगे तो मेरा बेटा बेटा क्या सोचेगा, नहीं नहीं उसको डांटना नहीं चाहिए, मेरा बच्चा है, ऐसा रहेंगे आप। वो गलत काम करेगा आप चुप रहेंगे, ये अटैचमेंट है। प्यार रखेंगे तो उसका अच्छा बुरा में आपको दिल लगेगा, उसको डांटेंगे, ये काम गलत है आप मत करो। ये प्यार और अटैचमेंट का डिफरेंस है। तो आपको आस, घर में प्यार रखना चाहिए। आसक्ति माताजी, आसक्ति, आसक्ति, ठीक है, आसक्ति, हाँ ठीक है। आप घर में प्यार, घर वालों को अपना कर्तव्य के द्वारा सेवा करना चाहिए। वो टू मच होके अपना भक्ति को बंद नहीं करना चाहिए। श्रेया समझ में आया? Yes, Mataji. क्योंकि अभी घर वाले तो बोलेंगे हम टीवी देखेंगे, मांस मछली खाएंगे, ऐश करेंगे, इधर उधर जाएंगे। मगर आप तो भक्त है, आपको जप करना है, भागवत गीता भागवतम पढ़ना है, और घर वालों को प्रसादम खिलाना है। ये राइट है। राम जो है, घर वाले सिनेमा देखने के लिए इच्छा करते हैं, मांस मछली खाते हैं, बाहर खाते हैं, उनके साथ अटैचमेंट है, मैं भी उनके पीछे जाऊंगी, ऐसा नहीं रहना चाहिए। उनको हमको सिखाना चाहिए, नहीं नहीं हम सब आज न कल तो मरना ही है। तो आप फिलॉसफी जानते हैं, अब एक ह्यूमन बीइंग का लक्ष्य क्या है? खाना पीना सोना मर जाना, यही है जिंदगी? नहीं, ये जिंदगी नहीं है। ये जीवन किसके लिए है? इस जीवन, व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसको हमको जानना चाहिए। हम औरत होके लेस इंटेलिजेंटी रहेंगे, ठीक है, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, ऐश करेंगे, अच्छा अच्छा साड़ी पहनेंगे, अब बस खाएंगे पिएंगे सोएंगे मर जाएंगे। ये जीवन नहीं है। हमारा जीवन का कर्तव्य, उद्देश्य है भगवत भक्ति करना है, भगवान के धाम जाना है। मरने के बाद किधर किधर जाना है? मरने के बाद फिर से जन्म लेना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम में आगे पीछे घूमेंगे, ये हमारा मकसद है नहीं। ये सब समझ के आपको परिवार में लगाव या प्यार प्यार रखना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्तव्य है तो दो कर्तव्य मैंने बोला, जैसे घर वालों को प्रसाद खिलाना, घर वालों को देखभाल करना, जब बीमार हो गए उनको देखभाल करना, ये सब ठीक है। उसके साथ भी आप भक्ति को ला सकते हैं। अपना चैंटिंग, जल्दी उठना, घर में भगवान का पूजा पाठ करना, ये सब साथ में रखेंगे तो आपका जीवन कंप्लीट होता है। नहीं तो वो तो सिर्फ एनिमल जीवन हो जाता है ना। बाकी लोग देखिए, आप बाहर का लोग खाते हैं पीते हैं सोते हैं मर जाते हैं, है ना। तो Mataji. इसमें आप भक्ति लाएंगे तो ब्यूटीफुल रहेगा, वंडरफुल रहेगा। श्रेया समझ में आया? हाँ Mataji. समझ में? Thank you. तो हाँ, आप प्यार करना चाहते हैं या आसक्ति रखना चाहते हैं? आप सोच लीजिए, ठीक है। हाँ, प्यार करना। हाँ प्यार चाहिए, है? भक्ति, प्यारमय भक्ति, ठीक है। हरे Thank you Mataji. Hare Krishna. कृष्ण। अंकिता, Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्ण। Mataji, I missed the initial part of the class, so I didn't get to hear the story of Devahuti, though I know her story that she was the mother of Kapila हाँ, Muni and how he liberated her. हाँ, But can you just repeat the story for like 3-4 minutes, if everybody is fine, to just like a recap of recap. this session? हाँ अच्छा है, हिंदी में ही होगा। Sure, sure. Ji, Mataji. हम लोग सिर्फ औरत लोगों का क्या कर्तव्य है इसके बारे में सुन रहे हैं। ये क्लास पूरा की पूरा एक औरत कैसे रहना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए औरत के लिए क्या चाहिए, यही मकसद है हमारा। हमारा ग्रुप का यही है गोल। क्योंकि नॉर्मल भक्ति क्लास में आप जाएंगे तो वो
अब सब लोग होते हैं, ब्रह्मचारी लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, उनके लिए जनरल बात बताते हैं। ये जो है सिर्फ विमेन ग्रुप है। इस विमेन ग्रुप में विमेन लेडीज क्या करना चाहिए, औरत लोग क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बोलते हैं। इसलिए मैंने देवहूति का एग्जाम्पल लिया। देवहूति एक पूरा दुनिया का राजा का बेटी थी, ठीक है। वो स्वयंभू मनु का बेटी थी, प्रिंसेस। हाँ, तो उसका टाइम हुआ शादी का, तो नारद मुनि बोले गर्दम मुनि सूटेबल हस्बैंड बोल दिया, तो वो किसी और के बारे में चिंता नहीं किया, बड़े लोग जो बोले वही माना। तो स्वयंभू मनु गर्दम मुनि के हाथ में देवहूति को दे दिया। गर्दम मुनि डिटेल में मैंने पूरा 1 घंटा यही स्टोरी सुनाया, आप वापस इसको I'll यूट्यूब see the पे recording. डालेंगे, आप सुनना पड़ेगा। तो गर्दम मुनि हाई लेवल डिवोटी है, तो उनको एक साथ शादी हुआ। तो गर्दम मुनि से सेवा कर करके देवहूति एकदम पतली दुबली बन गई। तब उनका सेवा में प्रसन्न होके गर्दम मुनि पूछा आपको क्या चाहिए। तब देवहूति ने बताया कि मुझे बच्चे चाहिए। तो उन्होंने बच्चे दिए। पहले तो 9 लड़कियां आए, फिर बाद में भगवान ही स्वयं उनके गर्भ में अवतार हुआ। तो तब गर्दम मुनि वानप्रस्थ संन्यास लेके चले गए। देवहूति अपना बेटा को गुरु बना दिया। ये भी शिक्षा हमको मिलना चाहिए। जब अपना पति अच्छा भक्त है, बेटा अच्छा भक्त है, हम उन लोगों से भी शिक्षा ले सकते हैं। जो इधर तो बच्चा ही, उनका बेटा ही भगवान है, अवतार है, भगवान का अवतार है। तो उनसे वो शिक्षा ले लिए और उनका जीवन उद्धार हो गया और वो बन गए होली रिवर। तो उनका इतना खूबसूरत शरीर होली रिवर बन गया और वो भगवान के पास चले गए। गर्दम मुनि भी भगवान के पास चले गए, देवहूति भी भगवान के पास चले गए। ये देवहूति ऐसा नहीं बोला मैं सन्यास बन जाऊंगी, मैं वो लाल कपड़ा पहन के माला फिरूंगी, बाहर घर का काम नहीं करूंगी, घर में कुछ कर्तव्य नहीं करूंगी, सिर्फ माला करते रहूंगी, ऐसा नहीं बोला। बच्चा को पालन पोषण किया, शादी करवाया 9 लड़कियों को, अपना बेटा का सेवा करके उनसे शिक्षा लेके वो भक्ति में आगे बढ़े। तो इसमें देवहूति का जीवन में हम ये सीख रहे हैं कि वो अच्छा घरवाली भी है, अच्छा भक्त भी है, दोनों कर्तव्य अच्छी तरह निभाया। लेडीज के लिए, सबके लिए 2 कर्तव्य है, एक तो शरीर का कर्तव्य है, एक आत्मा का कर्तव्य है। तो शरीर का कर्तव्य, हम लेडीज है तो घर निभाना है, घर में अच्छी तरह सब कुछ करना है। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं लेडीज को क्या 2 इम्पोर्टेंट काम है, कुकिंग एंड क्लीनिंग। ये सेवा ही है, ऐसा नहीं है कि कुकिंग और क्लीनिंग सेवा नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये भी सेवा है। कुकिंग करते हैं कृष्णा के लिए, क्लीनिंग करते हैं कृष्णा का घर को हम मंदिर बनाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी also क्या आपने सांख्या टीचिंग्स भी आज डिस्कस किया? नहीं किया। नहीं, ओके, थैंक यू। वो बहुत ही थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, डीप स्टडी है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो फिर उसमें हम जाएंगे नहीं। हमको जितना जरूरत है उतना मैं सिखाऊंगी। सांख्य फिलॉसफी डीप फिलॉसफी है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। भद्रवती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू। भद्रवती माता जी। Yes, Mataji, Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam, Mataji. जगत प्रणाम। Mataji, I wanted to ask, मुझे पूछना था कि कभी कभी विल भी हम मंदिर सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी मिसमैनेज हो जाता है घर में, लाइक वी विल नॉट बी एबल टू डू सर्टेन थिंग्स इन होम, और लाइक cleaning itself, or arranging things in home, will neglect little bit home. Then how we should practice to manage, Mataji? But our main focus should be outside. You are not a brahmachari. तुम तो ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी को मेन फोकस मंदिर ही है।
और औरत को मेन फोकस घर होना चाहिए। मंदिर में सेवा करने से वो एक सेटिस्फेक्शन तो जरूर मिलता है, बाहर मेन फोकस घर है। यस माताजी। फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है कभी कभी छूट जाता है चलेगा, फेस्टिवल के समय पर है। और जब कोई वीआईपी आए, वीआईपी मतलब सन्यासी गुरु, बड़े बड़े भक्त लोग आए, तब ज्यादा सेवा होता है, तब थोड़ा बहुत घर तो निग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाद में जाके पति को और बच्चों को ज्यादा अच्छा कुछ खिला के उनको समाधान करना चाहिए, उनके साथ टाइम बिताना चाहिए उनका। क्योंकि औरत को जो परिवार है, परिवार मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, हस्बैंड बच्चे और हस्बैंड के माता पिता, ये सब है। ये सब औरत के लिए एक, क्या बोलते हैं, जो स्टैंड है जिसमें हम रह हमको दुनिया, धरती में खड़े रह सकते हैं, है ना। औरत का दुनिया। औरत का दुनिया है जिसमें आप जैसे आप चित्रकार है तो चित्र करने के लिए आपको बोर्ड चाहिए। बोर्ड नहीं है तो चित्र आसमान में तो मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। हम खड़े रहने के लिए हमको एक लैंड चाहिए, लैंड नहीं है तो आसमान में हम अटक जाएंगे। तो ये जो परिवार जो है आपका बोर्ड है जिसमें आप चित्र बना सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस आप जानेंगे तो आप प्रायोरिटी वो होगा साइमल्टेनियसली। अभी करते करते अपना कर्तव्य करते करते जब सेटलमेंट हो जाएगा, मैं कुछ औरत लोगों को देखा, वो लोग क्या हो जाता है, ठीक है भक्ति नहीं है, मीन्स भक्ति करते हैं पर ज्यादातर पोता पोती, उसका पोता पोती उसमें लीन हो जाते हैं, जानते नारायण स्मृति आएगा नहीं। हम कर्तव्य के साथ भगवान का जप भी करना चाहिए। तो हम जब जब अपना कर्तव्य खत्म हो जाता है, जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, पति पत्नी दोनों मिलके वानप्रस्थ जीवन में जाके, तब कंप्लीट डिटैचमेंट आएगा, तब पूरा की पूरा भगवान के ध्यान पर हम जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप यंग है भद्रवती, आप तो यंग है, यस माताजी। बच्चा बड़ा होना चाहिए, उसका सेटलमेंट होना चाहिए, फिर आप पूरा की पूरा 24 आवर्स भक्ति में, भक्ति प्रचार, भक्त सेवा, ये सब में 24 आवर्स आप लगा सकते हैं। अभी तो प्रायोरिटी बच्चा और पति और घर होना चाहिए, कभी कभी ठीक है। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। सौजन्य। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आपने एक one thing you said, I will speak in English. I'm not that fluent in Hindi. I can understand. हाँ But ये जो थोड़ा जेंडर प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को। क्या है ना, आप एक स्टेटमेंट बोले, घर को मंदिर बनाना है, इतना अच्छा है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल स्टेटमेंट यू मेड, थैंक यू सो मच। मेरे को एक डाउट है माता जी कि सब लोग यही पाथ में नहीं होता ना घर में। हाँ, सो औरत लोग लाइक आई एम मोर डिवोशनल कंपेयर टू, सो थोड़ा फ्रिक्शन होता है ना माता जी, ऐसे वो कैसे सॉल्व करना ना, कैसे संभालना, बिकॉज इट इज टू मच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल। हाँ सो वो आई अंडरस्टूड आई अंडरस्टूड आई या अंडरस्टूड। वो थोड़ा उसमें थोड़ा बोलिए कैसे हैंडल करना वो। हाँ, इसी लेक्चर में मैंने एक पॉइंट बताया, ये घर में इम्पोर्टेंट चीज खाना है, उसमें आप और लव एंड डिवोशन मिलाएंगे तो जो भी चेंज नहीं होते हैं ना वो लोग चेंज हो जाएंगे। इसमें एक इंटेलिजेंस अप्लाई करना पड़ेगा, लेडीज लोग फैनेटिक नहीं बनना चाहिए। जैसे आप मंदिर जाना चाहते हैं, आप हमेशा जप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं आते, ठीक नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लाइक थोड़ा डिफरेंस तो होगा। माहौल डिफरेंट होता है ना माता हाँ, जी। समझ गई समझ हाँ, गई। इतना थोड़ा डिवोशनल नहीं होता है, थोड़ा 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 कम है, उसको हम्म कैसे हैंडल करें, उसको बहुत रफली हैंडल नहीं करना चाहिए, टेक्निकली। इसलिए मैं हम्म बोलती हूँ जो आप बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, हम्म में आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा भगवान को, हम्म परिवार के साथ हम लोग भक्ति करें।
परिवार आपका प्रार्थना में ये होना ही चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि मैं अकेले जा रही हूँ, अकेले आ रही हूँ, नहीं, मेरा परिवार के साथ मैं आपका सेवा करना चाहता मेरे हूँ। को तो अकेले जाना नहीं चाहिए। मेरे कैसे सब लोग मिलके करे तो मेरे को अच्छा लगता। लगता है मगर अभी नहीं आ रहे हैं तो आप मत बंद करना, आप करो, आप करो, आपके पीछे पूरा परिवार आ जाएगा। पर उसमें आप प्यार रखिए, जब परिवार लोगों के साथ झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से आप बोल के करिए, एक प्रसाद खाइए, इधर मंदिर में ऐसा ऐसा मैंने सुना था वो अच्छा लगा, आप सुनिए, ऐसा प्रभुपाद का एक बुक में ये अच्छा लिखे हैं, ये पढ़िए, लाइक दैट यू हैव टू ब्रिंग। उधर झगड़ा करना, फाइटिंग करना, उनको कुछ कुछ औरत लोगों को मैंने देखा, वो बन जाते हैं अच्छा भक्त बन जाते हैं। जो अच्छा भक्त नहीं बने उनका पति, एक बार एक माता जी ने उनका गुरुदेव से इंट्रोड्यूस किया। गुरुदेव के सामने पति को बोले ये मंदिर नहीं आते हैं, पढ़ते नहीं है, चैंटिंग नहीं करते हैं, बोला तो ओके। गुरुदेव तो ही डिडंट एक्सपेक्ट, गुरुदेव ये नहीं एक्सपेक्ट किया, मगर इन्होंने बोलने लगे तो पति को इतना ईगो अफेक्ट किया, वो जिंदगी में आया नहीं। बहुत बुरा है वो। दैट इज वेरी बैड। वेरी 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 बैड। कोई भी नहीं ऐसा बेटा, नहीं बोल रहे, मैं क्या बोल रही हूँ माता जी, आप बोले ना घर को नहीं मन सीरियसली बनाना, आप जान वो लीजिए, जो डिवोशनल नहीं सेंसिटिव, एटमॉस्फियर, हाँ डिवोशनल एटमॉस्फियर जो है ना, हाँ वो बनने में लाइक व्हाट इज आवर रोल एज ए वुमेन। वो लोग आते सब कुछ करते, हमारे घर वाले तो सब कुछ करते, और प्रशांत, थोड़ा डिवोशनल और थोड़ा डिवोशनल। मेरे को कैसा होता ना, वो कितना भी डिवोशनल है मेरे को सफिशिएंट नहीं है। मेरे इतना ठीक पागल नहीं, है। नहीं वो सौजन्य माता जी, आपने प्रसाद में प्रार्थना ही ठीक है, लव एंड डिवोशन, आप अच्छी तरह प्रसादम बना के भगवान को भोगा लगा के भगवान को ऑफर करिए, उसमें एक विनती भी, एक प्रार्थना भी है, हम सब लोग आएंगे, इसमें काम चलता है। और वो लोग को धीरे धीरे, मतलब वो लोग सब कुछ करते हैं, पर थोड़ा ढीला है कि क्योंकि उनको फाइनेंशियल पार्ट देखना है ना। उनको काम ज्यादा भी होगा, अब शायद औरत लोगों को टाइम ज्यादा है, आदमी लोगों को टाइम ज्यादा नहीं मिलता, इसके बारे वजह से ऐसा दिखता होगा, मगर प्रभुपाद का पुस्तक आप दिखी दे साथ में पढ़िए, रीडिंग ग्रुप घर में बनाइए, हाँ वो अच्छा है। घर में एक दो अच्छा प्रभुपाद का बुक्स निकालेंगे, सोने के पहले 5 मिनट, ज्यादा भी नहीं, 5 मिनट हाँ रेगुलर प्रैक्टिस जो भी हम करते हैं परिवार में सब लोग, हाँ, ये आइडिया अच्छा है माता जी। एक डिवोशनल सर्विस टुगेदर करना चाहिए, एक आरती हो सकता है, हाँ। एक रीडिंग हो सकता है, एक हम्म, या कुछ कुछ लोग अच्छा गाने हम्म, में अच्छा है तो ये कीर्तन हो सकता है, ऐसा हम्म। कुछ भी आप टुगेदर करिए। ये आइडिया बहुत अच्छा है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद, हरे कृष्ण। हाँ अभिश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे अ, अरे आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, फिर भी आप 1 आवर से आप बोल रहे हैं। हाँ, तो अ, माता जी, मुझे एक प्रश्न है कि शास्त्र में बहुत बेटा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना, कि बेटा श्राद्ध करेगा, बेटा के साथ फिर मदर को फिर रहना है, जब वानप्रस्थ हो जाएगा ले लेंगे तो पति, और ऐसा सब बहुत ये है। पर अभी आज के जमाने में तो, पहले तो बहुत बच्चे हुआ करते थे, आज के जमाने में तो ज्यादा बच्चे नहीं होते, 1 या 2 ऐसा होता है। सो अगर बेटी है किसी को तो कैसे सोचना है? अगर हस्बैंड सपोज वानप्रस्थ या संन्यास लेना चाहे तो, चाहे मतलब ऐसा इतना ज्यादा नहीं होता है फिर भी, तो कैसे उसको कोई पूछे तो कैसे बताना है? बताएंगे, बताओ तुम्हें, देखो बेटी है, ये सब बेटा बेटी, बेटा को वो जो श्राद्ध देना है, ये सब कर्म कांड है, ठीक है। जब एक व्यक्ति 100% कृष्णा कॉन्शियस में आ जाते हैं, ये सब जरूरत ही नहीं है, पिंडदान ये सब हमको करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियस वे में। मगर जब एक व्यक्ति पूरा प्योर भक्ति में आ जाता है ना,
इसका ज्यादा इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, जब बेटी है तो वो वक्त बनेगी तो माँ उसके अंडर रह सकती है, उसका पति के अंडर, जमाई के अंडर, सन इन लॉ के केयर में, जब पति वानप्रस्थ लेके जाएगा तो। आजकल वानप्रस्थ जैसे अभी वैदिक हिस्ट्री जैसा, ठीक है, हस्बैंड 50 साल हो गया, वो सैफरन पहन लिया, वो चला गया, ऐसा नहीं है ना। पति पत्नी दोनों मिलके प्योर डिवोशन 24 आवर्स, पूरा जिंदगी भक्ति करते हैं, यही सजेस्टेड है। अभी वानप्रस्थ संन्यास का मतलब यही है आज का जमाने में, कलयुग में, क्योंकि कलयुग। माता जी, सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसा कुछ है क्या माता जी, लाइक कोई सेंटर है ऐसा, लाइक आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा गुजारने के लिए जाके इस्कॉन के अंदर? इस्कॉन में ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग। वो जो पति पत्नी जिधर भी है, जैसे मायापुर वृंदावन में जाके सेटल हो सकते हैं, या नियर टू टेम्पल सेटल होके टेम्पल का सर्विस ज्यादा करते हैं। अभी यंग है, बच्चे यंग है तो कमाना पड़ता है, ये सब होता है, फिर कमाना बंद हो जाता है। वानप्रस्थ में कमाते नहीं है, जो सेविंग्स है, जो पेंशन है, पेंशन में जीवन चलता है, और बच्चे तो सेटल्ड है, तो फिर वो लोग ब्रह्मचारी जैसा ही है जीवन, पूरा दिन भक्ति भक्ति है, प्रचार में रहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टेम्पल सेवा करते हैं। तो वो आप किधर भी रह के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मायापुर ही आना चाहिए या वृंदावन ही आना चाहिए। आप किधर भी रह के आप प्रचार भी कर सकते हैं, घर में प्रचार करो, आप ज्यादा शास्त्र पढ़ो, क्योंकि कोर्सेस बहुत है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ऐसा कोर्स बहुत ज्यादा है। वो सब आप पूरा फुल टाइम पढ़ाई करके फिर प्रचार में भी लग सकते हैं। तो ये पैकेज है, आप उधर रह के भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सेंटर, वानप्रस्थ सेंटर ऐसा कुछ नहीं है इस्कॉन में, मगर वानप्रस्थ जीवन हम किधर भी रह के कर सकते हैं, मगर लाइक माइंडेड डिवोटीज के साथ संग में रहना बहुत जरूरी है। तो आप नियर टू टेम्पल सेटल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो आप फायर्ड अप रहेंगे। अच्छा, सेवा में लगा रहते हैं, इधर आप डिफरेंट एरिया है, डेटीज है, डेटी वर्शिप है, प्रचार है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, कीर्तन है, ऐसा बहुत 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 एरियाज है जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड है, वो आपको बढ़ेगा। ठीक है, अभी एक माता जी ने हाथ उठाया, उनका नाम लिखा नहीं, फोन का नाम, हाँ बोलिए बोलिए। This is Gopinath Ishrival. हाँ, Pranam Mataji. correct. Pranam. Many हाँ, times I have read Devahuti's story, but today when I heard from you, it was like I was hearing for the first time like that. It was so nice. Anyways, I don't know to speak Hindi, and I felt so happy and joyful hearing your class. I have one doubt, Mataji. Can I ask in English itself? yeah, no problem. Please ask. Actually, the enthusiasm, determination, and patience, whatever Devahuti had in her life, now women in Kali Yuga, we do lack it, isn't it? Due to some reason, whatsoever the reason may be, due to the society arrangement or the modern education, etc., etc. So, how to cultivate this enthusiasm, determination, and patience in devotional service, Mataji? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये सवाल मैंने सोचा था कि देहूती जैसा हम कैसे बनेंगे। आप तो हिंदी हिंदी जानते हैं ना, हिंदी बोलूंगी तो आप समझ में आ जाएगा ना गोपीनाथ ईश्वर माता जी, यू कैन अंडरस्टैंड नो हिंदी। Yes, Mataji. मैं जब ये क्लास के लिए प्रिपेयर कर रही थी, ये सवाल मेरे मन पे उठा, कोई तो ये सवाल पूछने वाले। देहूती तो डिफरेंट युग का माता है, इस युग कल युग का तो है नहीं। I had the same doubt when you were telling the story. इसका आंसर है हमें पूरा भागवतम में ऐसा पर्सनालिटीज डिस्क्राइब किए हुए हैं। जस्ट बाय हियरिंग देयर स्टोरी, जस्ट बाय हियरिंग वी गेट एम्पावरमेंट। देहूती का नाम लेने से हमको बहुत पुण्य मिलेगा।
वो 100% है तो हमको 1% मिलेगा ना, 1%. We will get something from that. We may not become Devoti. At least we will have some changes in our heart. That is for sure. देवहूति मेडिटेशन ज्यादा करेंगे तो देवहूति का क्वालिटीज वी कैन क्योर इवन इन कलयुगा. अभी हम भक्त बनाना है. बहुत लोग नहीं चैंटिंग नहीं करते, जल्दी नहीं उठते, मांस मछली नहीं छोड़ते, हम छोड़ चुके हैं हम. तो देवहूति जैसा हम भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बन नहीं सकते. Why not? We can do it. That's why भागवतम में लिखा है, देवहूति जैसा तुमको भी बनना है. इसलिए लिखा है, maybe not today, but just by repeated hearing, उनके बारे में सुनना और उनसे लगाव रखना. मैंने एक आर्टिकल तमिल में लिखा उनके बारे में, आप पढ़ सकते हैं, गोपीनाथ ईश्वरी. वो एक आर्टिकल लिखा उनके बारे में, अழகும் अघोरमुम. ये डीप मेडिटेशन है. देवहूति के बारे में हम मेडिटेट करेंगे ना, थोड़ा बहुत आएगा, इतना परफेक्शन नहीं आएगा तो भी आएगा. अप्रिसिएशन, देवहूति को हम अप्रिशिएट करेंगे. वो कितना महान है, उसमें हमारा हृदय में फर्क आ जाता है. जैसे हम असत्संग लेते हैं, ठीक है, एक सिनेमा हीरोइन को देखते हैं, कितना गंदी गंदी चीजें अंदर जाता है. वो सिनेमा हीरोइन ये लगाया, मैं भी वही लगाऊंगी, वो ऐसा कपड़ा पहना, मैं भी ऐसा कपड़ा पहनूंगी. वो 2-3 शादी करती है, इधर जाती है उधर जाती है, हाँ ठीक है, चलता है, वो तो चलता है. ऐसा विचार हमारा भी आता है. रोल मॉडल हम बदलेंगे, देवहूति रखेंगे हमारा हृदय में, फर्क आएगा, धीरे धीरे आएगा. जितना ज्यादा लेंगे उतना अच्छा आएगा. ठीक है, सेटिस्फाइड. हाँ, So much. Yeah. Thank you, Mataji. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. भद्रवती माता जी, हो गया क्वेश्चंस और अनदर क्वेश्चन? वो शायद ओल्ड, वो हाथ नीचे नहीं करी है. अच्छा ठीक है, ठीक है. So, Mataji, one last question which you can elaborate in next class. हाँ हाँ, यस, Shall I ask? हाँ प्लीज. हाँ, ये देवहूति की स्टोरी में one thing which I observed is that she was eligible to have God as her child. है ना माता जी? हाँ हाँ हाँ. हाँ, so इसके लिए वो क्या किया? What was her tapasya She to was become eligible? she was serving devotee husband. She was serving devotee husband without any expectation or without any. I think they have done together. I guess they have done They are together. done together. She herself is basically a devotee only. देवहूति स्वयंभू मनु का बेटी है तो है ही हाई कैलिबर लेवल, जन्म से ही है संस्कार. तो फिर सेवा भी ऐसा घमंड नहीं था. जी, गर्दम मुनि सिंपल ऋषि, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल है. ये तो प्रिंसेस है ना, कैसे रॉयल लाइफ जिया होगा. उस रॉयल लाइफ का कुछ भी घमंड या कुछ भी सोफिस्टिकेशन नहीं है उनके हृदय में. मेरा पति है, इनका सेवा करना चाहिए, बस इतना ही था. क्या ये हम तो बन सकते कभी? हम जैसे लोग रिलेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं, आज नहीं तो कल, इफ नॉट इन दिस नेक्स्ट जन्म में क्या कुछ करने से वो बन सकते क्या? जरूर प्रभु कृष्ण का माता बन सकती क्या मैं? जरूर बन सकते हैं, क्यों नहीं, जरूर बन सकते हैं. क्या करना चाहिए? वो सब भक्ति प्रोसेस है. अच्छा माता जी, वो थैंक बहुत यू. बड़ा तपस्या है, भक्ति प्रोसेस है, बन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको क्यों. भगवान तो समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों को बराबर प्यार करते हैं. एक बात है. दूसरी बात ये, यथा मम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जिसको जो चाहिए वो देते हैं ये, मगर उसका लायक हम बनने के लिए करना पड़ेगा. हाँ, वही तो पूछ रहे हैं माता जी में, वो वही बहुत, पूछ रहे हूँ. ये बहुत उच्च कोटि का वो है. हमारे लिए गुरु आचार्य ने
एक पैकेज साधना प्रोसेस दिए हैं, उसको हम करेंगे। ये सब स्पिरिचुअल डिजायर्स तब मैनिफेस्ट होगा, उसको पाने के लिए भी शक्ति भगवान ने देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, आई ये एम वेरी सब इंटरेस्टेड। हमसे हमारा प्रयत्न से नहीं, भगवान हमें मदद करेगा। अभी जो गुरु बोले, जो प्रभुपाद जी ने बोले, वो हम करते आएंगे। ये सब वेरी डीप, वेरी हायर लेवल है, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मैं डिस्करेज नहीं करती हूँ। अभी का स्टेज में आप अब डॉक्टर है, अब अभी मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टरेट प्रोफेसर हूँ मैं, डॉक्टर नहीं हूँ। ओके ओके, आई एम डॉक्टरेट। आप अभी नर्सरी क्लास में है, ठीक है। हाँ बाहर अभी आप पूछ रहे हैं वो पीएचडी का लेसन्स। हाँ, वही पीएचडी रीच करने के लिए तो शुरू तो करना है ना अभी माता जी। अब स्कूल में एडमिट हो गया ना, अभी अभी नर्सरी जाएंगे, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फिर हाँ, 10th, फिर वो 11th। थोड़ा गाइडेंस चाहिए आपसे। मेरे से नहीं, मैं देंगे, हम लोग लोअर लेवल गाइड्स है, हायर लेवल गाइड भी आपको दिलवा देंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वनिता माता जी, वनिता, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हाँ, माता जी, my question is, can we accept the decisions of non-devotee families, which is not at all favorable to our devotional life? Some major decisions which may hurt the emotions and all. Can we accept those decisions, माता जी? इधर आपको थोड़ा ये सिचुएशन के मुताबिक मुझे जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि ये कौन सा डिसीजन है, क्या डिसीजन है, बहुत कुछ है ना, ठीक है। Yes, माता जी। जैसे कि एक है, ठीक है, अभी नॉन डिवोशनल फैमिली में एक लड़की को नॉन वेज खाने के लिए बोल रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? झगड़ा मत करो, मगर साइमल्टेनियसली तुम नॉन वेज आप लोग खाओ, उधर झगड़ा नहीं, मुझे आप कंपल मत कीजिए, विनती करिए, एग्जाम्पल के लिए। नो माता जी, नॉट खाने के ऊपर ऐसा नहीं, हाँ completely different situations, जैसे we cannot perform our devotional life, मतलब डिवोशनली ज्यादा प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते ऐसे सिचुएशंस में। हाँ हाँ, समझ में हो गया। इवन इफ वी ट्राई विदाउट, मतलब एसोसिएशन में नहीं रह के फॉल डाउन होने का डर भी होता है, फिर अकेले कर सकते हैं क्या माता जी? कैन वी आप एक्सेप्ट नहीं नहीं, डिसीजंस? आप एक ही काम सबको करना है, वो एक काम है, हृदय में तीव्र तीव्र इच्छा रखना चाहिए, एक ही काम। जब सिचुएशन आएगा तब पकड़ जाएगा, जब आपका जो अग्नि है भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने का, वो जो दिया है ना, वो दिया को आप रखिए, प्रोटेक्टेड रखिए। जब भगवान वो जो कर्मों के कर्म से ही हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे, पिछले जन्म में कभी भी अपराध किए होंगे, गलतियां किए होंगे, इसलिए अभी भक्ति में रुकावट आ रहा है। तो आप अभी ठीक है, सत्संग आपको नहीं मिल रहा है, आप मंदिर ज्यादा नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर जब कीजिए, जब जब चांस मिलता है तब आप उठाइए। जब भी आपको माइंड को इधर उधर मत करिए, माइंड को सिर्फ चैंटिंग में लगाइए, रीडिंग में लगाइए, तो वो किधर भी आप कर सकते हैं। तब भगवान सब वातावरण को बदल देता है। आपको तीव्र इच्छा रखना चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए, मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, भगवान कृपा करिए करके आप तीव्र इच्छा अंदर रखिए, भगवान सिचुएशन को बदल देता है। एक लड़की, ये स्टोरी मुझे बोले बिना रह नहीं पाऊंगी। ये सब हम बोलते हैं देवहूति, बड़े 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 पर इस कलयुग में, इस जमाने में एक लड़की, उनका घर में चैंटी करने दिया नहीं, मंदिर नहीं जाने दिया, उसको शादी हो गया, एक एकदम मांस मछली खाने वाला मीट, और उसका सासू माँ इतना गालियां देने वाली सासू माँ, ऐसा परिवार में वो चली गई। पर ये लड़की इतना तीव्र था थे, बाथरूम में चैंटी किया,
10 साल आप अब कल्पना भी नहीं कर सकते वो कैसे मैनेज किया, क्या पता है। चैंटिंग 16 माला करती थी 10 साल। इतना 10 साल से लगातार 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 प्रार्थना किया। फिर मैं मायापुर में परिवार के साथ देखा तो भगवान, कभी कभी किसी किसी को देर भी लग जाता है बाहर। वो लड़की बहुत डिटर्मिन्ड थी। किसी ने किसी का ग्रुप में ओके कोई और मेरा पहचान वाले का वो स्टूडेंट थी वो। फिर उन्होंने दिखाया और बताया। मैं हर हर क्लास में बोलती हूँ इस कलयुग में ऐसा लड़की हमेशा रोई नहीं थी। वो रोया ही नहीं। पति को, सासू माँ को, सबको हंस हंस के सेवा करती थी। ठीक है, चुप चुप के भक्ति करती थी। ये तो उस लड़की को हमेशा मैं प्रशंसा करती हूँ। उसका देखिए हुआ ना। तो हम डिटर्मिनेशन अंदर रहना चाहिए। उसका बढ़ाइए। प्रभुपाद का बुक्स है, प्रभुपाद का बुक्स है। सत्संग ऐसे जब समय समय मिलता है आप ले लीजिए और आगे बढ़िए। भगवान जरूर रुकावट को बंद कर निकाल देते हैं। कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा, निकल जाएगा। सच बोल रही हूँ। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे यही टाइम पर, यही कनेक्शन पर। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धिभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा।